હું પણ આરતી આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। સુપ્રસિદ્ધ રામ પારાયણ કથાકાર મોરારી બાપુ આજ રોજ 12 જ્યોતિર્લિંગમાં પ્રથમ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર પહોંચ્યા। સોમનાથ મહાદેવને દર્શન બાદ તેઓએ ચોપાટી મેદાન ખાતે કથાનું રસપાન કરાવ્યું। 12 જ્યોતિર્લિંગમાં રેલમાં નીકળેલ યાત્રાનું સોમનાથમાં સમાપન થયું। 12 જ્યોતિર્લિંગ રેલ કથાના આયોજન અંતર્ગત આજ રોજ પૂજ્ય મોરારી બાપુ તેમના 1008 કથા યાત્રિકો સાથે સોમનાથ મહાદેવ મંદિર પહોંચ્યા। પૂજ્ય મોરારી બાપુ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાં રામકથા કરવા નીકળ્યા છે, જ્યારે આજરોજ કથાની પૂર્ણાહુતિ સોમનાથ ખાતે કરવામાં આવી। બાપુ સૌ ભક્તો સાથે રેલવે દ્વારા વેરાવળ પહોંચ્યા, ત્યાંથી સોમનાથ આવ્યા હતા। પૂજ્ય બાપુનું ઢોલ નગારા અને ભૂદેવોના મંત્રોચ્ચાર સાથે સોમનાથમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। ત્યારબાદ ગંગાજળ અભિષેક પૂજા સામગ્રી સોમનાથ મહાદેવને અર્પણ કરી તેઓ ધન્ય બન્યા। પૂજારી દ્વારા રુદ્રાક્ષ માળા અને પ્રસાદી કીટ આપી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। મોરારી બાપુ સોમનાથ મંદિર પાસે આવેલ સાગર દર્શન ખાતે પહોંચ્યા, જ્યાં તેઓનું સ્વાગત સન્માન ટ્રસ્ટી પ્રવીણભાઈ લહેરીએ કર્યું। ત્યારબાદ પૂજ્ય બાપુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્યાંથી સદેહ સ્વધામ ગમન કર્યું તે ગોલોકધામ તીર્થમાં પહોંચેલ હતા, જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણની પાદુકાજીને અભિષેક અને પુષ્પાર્ચન કરી ધન્ય બન્યા। બાપુ ગોલોકધામથી સોમનાથ કથા સ્થળ પહોંચ્યા હતા, જ્યાં મોરારી બાપુનું પુષ્પહાર સાથે ટ્રસ્ટી પ્રવીણભાઈ લહેરીએ સ્વાગત કર્યું। સાથે જ સોમનાથ મહાદેવની 26 મૂર્તિ ભેટ આપી તથા ટીમ દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે વિધિવત રામકથાનો પ્રારંભ કરાવ્યો। કથામાં હજારોની જનમેદની ઉમટી પડી। 12 જ્યોતિર્લિંગમાં ફરીને આજે ઐતિહાસિક રામકથાનું જૂનાગઢ ખાતે સમાપન થયું છે। સમગ્ર ભારતના ભાવિ ભક્તો જોડાયા હતા। તેમને પ્રતિભાવ આપ્યો કે આ પ્રકારની ઐતિહાસિક રામકથામાં સામેલ થવું ખૂબ જ ધન્ય ઘડીની વાત છે। દેશના 12 જ્યોતિર્લિંગ દર્શનની સાથે રામકથાનું સ્મરણ કરવું એ ભવોભવના પુણ્ય સમાન જવાઈ રહ્યું છે। સૌરાષ્ટ્ર સોમનાથન છે। આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં ભગવાન સોમનાથ પ્રથમ સ્થાને અને આ સોમનાથે અને આ સમુદ્રે અનેક ઇતિહાસો જોયા અને એ ઇતિહાસનો સાર હજી પણ એમને અડીખમ આ મહાદેવ અહીંયા સ્થાપિત છે। કેટલાય આક્રમણો થયા એ કદાચ મંદિર તોડી શક્યા, આપણા માયેલી શ્રદ્ધાને તોડી શક્યા અને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનું પૂર્ણ પ્રતીક આજે સોમનાથની ધજા ફેરી રહી। આપ સૌ જાણો છો, વેરાવળમાં હું દર વર્ષે 1 મહિનો રહેતો હતો। શ્રાવણ મહિનામાં રાત્રે કથા કરતો હતો। અહીંયા પણ ઘણી કથા કરી। વર્ષમાં એકાદ વખત તો હું આવું જ છું। હું આવું છું નહીં, મને સોમનાથ ખેંચે, મને પકડે છે। એટલે અહીંની શિવજીનો પ્રભાવ એના ઉપરથી આ પ્રભાસ, શિવની સૌમ્યતા એના ઉપરથી અચંબ, આ પ્રભાવ અને સૌમ્યતા આખા જગતને એની ધજાની જે અણિયાળી જે એ તીર નથી, એ ભવસાગરનું તીર છે, એ આપણને બધાને છે। આપના શ્રોતાઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામના, धन्यवाद, खुश रहो, जय स्वामी। मुरारी बापू की द्वादश ज्योतिर्लिंग की राम कथा आज समापन के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में पधारी है। सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से हमने उनका स्वागत किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा के समापन के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो कड़ियाँ हैं वो एक के साथ जुड़ रही है। 2019 में इसी स्थल पर द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक बड़ा समारोह रखा गया था, जिसमें 700 से अधिक लोग आए थे और सारे द्वादश ज्योतिर्लिंग के विकास के लिए भारत सरकार कृत निश्चयी है। उज्जैन में कायाकल्प हो चुका, काशी में हो चुका, सोमनाथ में तो आगे से हो रहा है, जैसे केदारनाथ में भी हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हर ज्योतिर्लिंग में आने वाले यात्रियों के लिए उनकी श्रद्धा को साकार करने के लिए हर तरह की सुविधा का व्यवस्थापन किया जाए। सर, ये जो 12 तरह से किन शब्दों में व्यक्त करो? बहुत ही आनंद की बात है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग को एक साथ जोड़ के ये यात्रा की गई। द्वादश ज्योतिर्लिंग का महत्व
हमारे देश के हर सनातनी धर्मी में बहुत ही गहरा है और शिव जो आदि अनादि देव हैं और जो सबसे बड़े देव महादेव हैं, उनकी राम कथा के साथ जोड़ के महादेव की जो पूजा अर्चना हर जगह की गई है, इससे सबको बहुत ही खुशी हुई है। बहुत ही आनंद की बात है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग को एक साथ जोड़ के ये यात्रा की गई। द्वादश ज्योतिर्लिंग का महत्व हमारे देश के हर सनातनी धर्मी में बहुत ही गहरा है और शिव जो आदि अनादि देव हैं और जो सबसे बड़े देव महादेव हैं, उनकी राम कथा के साथ जोड़ के महादेव की जो पूजा अर्चना हर जगह की गई है, इससे सबको बहुत ही खुशी हुई है। मैंने ये यात्रा केदारनाथ से स्टार्ट करी है और 12 ज्योतिर्लिंग पूरा 12,000 किलोमीटर का हमारा ये डिस्टेंस रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। हर तरफ हर दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए गए हैं और कथा भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और अब यहाँ आ गए हैं तो फाइनली इट्स द एंड, बट इट्स नेवर द एंड, नो। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा दुख भी हो रहा है कि अब बापू को देखने नहीं मिलेगा, अब अगली कब कथा होगी। भारत की चारों दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंग की राम कथा, किस तरह से आप इसको सोचते हो? ये तो कभी शायद किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से, मतलब इतने कम दिनों में और वो भी अपने गुरु के साथ में ये कथा कभी हो पाएगी। बट इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू और देखो सपने भी उन्होंने ही दिखाए और पूरे भी वही कर रहे हैं अब। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए यूथ, सब अभी यही चाह रहे हैं, एवरीबडी इज़ गेटिंग इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए और बहुत बहुत ज़्यादा लर्नेड एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ कथा नहीं है, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो पूरे ब्रह्मांड की अलग अलग चेतनाओं को जागृत करने के लिए निकली है। दूसरा, इसको जहाँ से शुरुआत की बात करें तो ये वेबसाइट पे आया था और हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। हम बापू को पहले भी सुनते आए हैं और एक ऐसा मौका मिला, इसको हम कहें सौभाग्य हमारा, कि हम बापू के साथ इस यात्रा पर जा सके। और जहाँ तक बात करें एक्सपीरियंस की, तो हमें सिर्फ अनुभूतियों के सिवा कुछ ना मिला। इतनी अनुभूतियाँ हुई, हर जगह, हर व्यवस्था, हर चीज़ इतनी सुंदर, इतनी अच्छी और इतनी डिफरेंट, जो शायद सोच से परे हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंसान अगर कोई करना चाहे तो न भी कर सके, ये बिना प्रभु की कृपा के, जैसा कि बापू ने भी बताया है कि बिना ईश्वर की कृपा के यात्रा कभी संभव हो ही नहीं सकती थी। और यही एक परम भावना लेके हम इस यात्रा में जुड़े थे और आज कहीं समापन की ओर पहुंचे। सर, यात्रा के पीछे ऐतिहासिक शब्द लगा हुआ है, आप इस शब्द को लेकर क्या सोच है? ऐतिहासिक बता रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में ट्रेन में पहली बार ये कथा यात्रा हो रही है। सर, मैं चूंकि अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ और बापू के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा मानता हूँ कि बापू कई जन्मों से कथा करते आ रहे हैं और कई जन्मों तक आगे करते रहेंगे। तो जहाँ तक इतिहास की बात है, हम इसको इतिहास तो नहीं मानते, लेकिन ये है कि ये वर्तमान, जो जैसा कि गुजरात में कहा जाता है कि हम किसी जगह से पसार हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं और हम इस जीवन को देखते हुए साथ साथ चलते जा रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल है और मैं श्रीनाथ जी से इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ।